Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are doing good. So here I welcome you all in your science class. Here we will discuss your last chapter of your science book. And in this class, in this chapter, what we have to discuss? We have to discuss about light, shadow and eclipse. These are the three things that we will discuss in this class, in this chapter. Okay, first of all, I will give you a little bit summary that the things that we will discuss in this chapter. Okay, first we will see what is the role of a light. What is a light? How the light is useful for you. How with the help of light we can see the things around us. Okay, then we will see what are the luminous object and non-luminous objects. What are they? Okay, these are the three things we will discuss about light. Then if there is a light, of course there should be a shadow also. Okay, if there is a light, there should be a shadow also. So here then we will discuss what is a shadow, how the shadow is formed, how the shadow position is changing during morning to evening to afternoon to night. The shadow is changing, how the shadow is changing and how the shadow is formed. Does every object has a shadow or not? We will see this also. And in the last, we will see about eclipse. What is eclipse? Solar eclipse and lunar eclipse. What are they and how they form? Okay, so these are the few things that we will discuss in this class, in this chapter. Okay, so ready for this class? So let's start this last chapter of your book, chapter 13, and the name of the chapter is Shadows and Eclipse. Okay, let's start this class. We see many things around us in our daily life. From the moment we wake up in the morning, we are able to see the things because light fall on the object, bounce off and travel through the space to reach our eyes. हम लोग आसपास जितनी भी चीजें देख पा रहे हैं वो बेटा किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से. अगर लाइट नहीं हो, आप एक ही इंस्टेंट देख लीजिए, आप 2 मिनट के लिए अपनी आईज क्लोज करिए. आपने आईज क्लोज की, आपको सिर्फ और सिर्फ डार्क दिख रहा है, कुछ चीज नहीं दिख रही. क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि लाइट पास नहीं हो पा रही. आपने अपनी आईज क्लोज कर ली है. सो लाइट के पास होने से ही आपको चीज दिख पाती है. और ऐसा ही अगर हम लाइट्स को भी ऑफ कर देंगे तो आप लोग मुझे नहीं देख पाओगे, है ना. सो लाइट्स की हेल्प से और वी कैन से लाइट की वजह से ही हम लोग चीजों को देख पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं. ओके, चलिए अब एक एक्टिविटी दी हुई है आपके सामने. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई देम एंड टिक द ऑब्जेक्ट दैट गिव अस लाइट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट गिव लाइट. आपने उन ऑब्जेक्ट्स पे टिक करना है जो आपको लाइट दे रही है. जैसे अगर यहाँ पे अगर एक बल्ब है तो ये हमें लाइट देगा, एक लैंप है ये हमें लाइट देगा, कैंडल हमें लाइट देगी, बट ये जो चेयर है ये हमें लाइट देगी नहीं. सो इसी तरीके से आपने करना है. ओके, चलिए फिर. अब लाइट हमने देखा, लाइट होती क्या है? लाइट इज यूजफुल बिकॉज इट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ठीक है, अब लाइट में की हेल्प से हम देखते हैं ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. सबसे पहले देखते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं. Things that give us light are known as luminous objects such as torch, tube lights, fire, candles, lamps, electric bulbs, sun, stars, etc. जो आपको लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें शाइन है. ठीक है, जो लाइट दे रहे हैं जैसे सन, टॉर्च, स्टार्स, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हो गए. While things that do not produce light are known as non-luminous object. जो लाइट प्रोड्यूस नहीं करते हैं वो है non-luminous object. जो लाइट प्रोड्यूस करेंगे वो luminous और जो नहीं करते वो non-luminous. एग्जाम्पल्स आर देयर. नॉन ल्यूमिनस के एग्जाम्पल है वुड हो गया, स्टोन हो गया, चेयर होगा, ट्री हो गया, एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. ये कुछ एग्जाम्पल है आपके नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की. ओके, तो दो चीज क्लियर होगी. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं? जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड नॉन ल्यूमिनस जो लाइट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट के रिफ्लेक्शन से क्या होता है? रिफ्लेक्शन मींस लाइट गई, टकराई और वापस आई, रिफ्लेक्ट हुई. ओके, non-luminous object can be seen only when the light fall on it and bounce off their surface to reach our eyes. This bouncing of light is known as reflection. Reflection का मतलब ही होता है लाइट का बाउंस बैक होना, मीन्स गई, टकरा के वापस आई. सो बाउंसिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से थे? जिनकी खुद की लाइट नहीं होती, जैसे लकड़ी है, टेबल है, चेयर है. ये लाइट प्रोड्यूस करती है?
नहीं। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम कब देख पाएंगे? जब इनमें से लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आएगी। क्लियर? चलिए, हाउ लाइट ट्रेवल कैसे करती है? लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रेज की फॉर्म में, किरण की फॉर्म में लाइट ट्रेवल करती है। इट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल थ्रू, इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। ये सॉलिड में भी पास होगी, लिक्विड में भी एंड गैसेस में भी। इट कैन बी इवन थ्रू वैक्यूम में भी लाइट कैन ट्रेवल। ओके, पासेज ऑफ लाइट थ्रू एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट से लाइट कैसे पास होती है अब वो देखते हैं। ठीक है, लाइट कैन बी पास थ्रू अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ग्लास एंड अ वाटर। Substances that allow light to pass through them is known as transparent substance. Transparent substance जो अपने आप में से लाइट को आर पार होने दे, मतलब उसमें से लाइट आर पार हो सकती है। जैसे ग्लास है, विंडोज में जो ग्लास लगे होते हैं उसमें से लाइट आर पार हो जाती है, तभी तो विंडोज अगर लगी हुई है तो आपको रोशनी आएगी, है ना। आपके रूम में अगर विंडोज है तो आपको बाहर की सनलाइट की रोशनी आपके रूम में आ सकती है। क्यों? क्योंकि वो विंडोज में जो ग्लास लगे हैं वो लाइट को आर पार होने दे रहे हैं। दे आर नोन एज ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, जो लाइट्स को अपने पास से आर पार होने दें। ठीक है, अब लाइट कैन नॉट पास थ्रू सम सब्सटेंस लाइक वुड, स्टोन एंड मेटल। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे वुड, स्टोन एंड मेटल्स, वो अपने आप में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं, वो है ओपेक ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, उसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है। नहीं, ये बोला ना लास्ट चैप्टर है। तो हमने दो चीजें देखी बेटा। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या थे? जो अपने आप में से लाइट को पास होने दे रहे हैं। ठीक है, वो है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से थे? जो अपने आप में से लाइट को पास नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें थी ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक सब्सटेंसेस के बारे में। अब देखते हैं, some substance allow only a little light to pass through them, such substance are known as translucent substance। देखिए, अब ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं? उनमें से ना तो पूरी तरीके से लाइट पास होती है, ना तो बिल्कुल नहीं होती, मींस ये बीच वाले होते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे एक ग्लास है। ठीक है, ग्लास में से आपको पता है लाइट पास होगी, पर वो ग्लास क्या है? बिल्कुल वी कैन से बहुत खराब ग्लास है, डर्टी ग्लास है। मींस कुछ लाइट उसमें से पास हो रही है, कुछ नहीं हो पा रही है। वो ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल। ट्रांसपेरेंट में से एकदम क्लियर लाइट पास होगी, ओपेक्स में से तो बिल्कुल नहीं होगी। तो जो बीच वाला है वो है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, अब ट्रांसलूसेंट के एग्जाम्पल आएंगे पेपर। पेपर में से देखा आपने कभी? कॉपी का पेपर लेके फाड़ के आप देख सकते हो। अभी तो नहीं है, नहीं तो हम करके भी देख सकते थे। ठीक है, तो पेपर को आप फाड़ के लाइट के सामने रखना, हल्की फुल्की लाइट पास होगी, है ना। तो आप ये करके देखना, पेपर को, डार्क ग्लासेस को, या फिर वाटर विद पार्टिकल्स ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस आर एग्जांपल ऑफ ट्रांसलूसेंट सब्सटेंसेस के एग्जांपल है। तो ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक सब्सटेंस क्लियर हो गए आपको? ओके, चलिए अब हम देखते हैं लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। Light rays travel in a straight line. When we switch on the torch in a darkness, the light appears to travel in a straight ahead. जैसे एक डार्क रूम है, एकदम अंधेरे वाले रूम में आपने टॉर्च अगर ऑन करते हो, आपने देखते हैं टॉर्च की जो रेज एकदम स्ट्रेट लाइंस में जा रही होती है ना, स्ट्रेट लाइन में। इससे हमें पता लगा लाइट्स ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो सिमिलरली व्हेन द सन filters through a small holes into a dark room, it appears a straight line. जब अंधेरे वाले रूम में थोड़ी सी सनलाइट आती है तो भी हमें ऐसा ही लगता है कि सनलाइट एकदम सीधी सीधी आ रही है। ओके, सो वी कैन वेरीफाई द स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ लाइट विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। आप ये एक्टिविटी करके भी देख सकते हैं, नहीं तो आपको मैंने एक एग्जांपल तो बता ही दिया है। डार्क रूम कर दो और टॉर्च मारो, आप देखोगे टॉर्च एकदम सीधी जाएगी। ठीक है, करके देखना आप लोग। ठीक है, इस चैप्टर को खत्म होने के बाद। ओके, चलिए, सो आपको लाइट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लाइट क्या है, लाइट कैसे ट्रेवल करती है। लाइट में भी तीन चीजें होती है, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट एंड एक ओपेक। क्लियर होगी? अब मूव ऑन होते हैं शैडो पे, परछाई। ऑफ कोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है उसकी परछाई जरूर बनती है। ठीक है, आप लोग भी देखना। ठीक है, आपने जरूर देखा ही होगा, ऑफ कोर्स परछाई तो सबने देखी है ना। चलिए, बाय नाउ वी नो दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हमको पता है लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। वी ऑल्सो नो दैट द लाइट कैन नॉट पास थ्रू द ओपेक ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स है उसमें से लाइट पास नहीं कर सकते। ओपेक ऑब्जेक्ट मीन्स जो ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं होती, जैसे जो हार्ड चीजें, लकड़ी है,
टेबल, चेयर, इनमें से लाइट पास नहीं हो सकती ना, तो इनकी परछाई बनती है। कभी भी देखना ग्लास की परछाई बनेगी, ग्लास की परछाई नहीं बनती क्योंकि उसमें से लाइट पास हो जा रही है। जिसमें से लाइट पास हो जा रही है उसकी परछाई नहीं बनेगी, जिसमें से लाइट पास नहीं हो रही सिर्फ उसकी परछाई बनती है, समझे? सो इन ओपेक ऑब्जेक्ट्स की ही सिर्फ परछाई बनती है, समझे? अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, शैडो की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। देखो जैसे इंसान है, ये क्या, ये ओपेक है, इसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, तभी इसकी परछाई बन रही है। देख रहे हो कितनी बड़ी, इंसान इतना सा, परछाई उसकी इतनी बड़ी बन रही है ना? चलिए, अब 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी शैडो की। फर्स्ट वन, अ सोर्स ऑफ लाइट, एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब लाइट होगी तभी तो परछाई बनेगी। एंड ओपेक ऑब्जेक्ट, एक ओपेक ऑब्जेक्ट होगी तो ही बनेगी उसकी, ठीक है? नेक्स्ट, एन ओपेक स्क्रीन और सरफेस वेयर द शैडो इज टू बी फॉर्म, ठीक है? तो वो ही आपकी परछाई बन सकती है, ठीक है? आगे, पोजीशन ऑफ अ शैडो, शैडो की भी पोजीशन होती है, वो कैसे? लेट्स सी। ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ शैडो इन द डायग्राम बिलो। देखो, अब देखो ये ऑब्जेक्ट आप देख सक रहे हो, यहां पे अगर मैंने रखा, ठीक है, इसकी इतनी परछाई बनी है, देख रहे हो ये? मतलब देखो आप ये देख सकते हो कि जितना पास, आपने कभी देखा लाइट अगर चली जाए अंधेरे रूम में, थोड़ी सी लाइट जला के आप जितना पास आते रहेंगे वो चीज बड़ी होती जाएगी, आपकी परछाई उतनी बड़ी होती जाती है, जितना दूर दूर जाते जाए छोटी होती जाएगी। अब करके देखना, आप लोग तो ये करने में एक्सपर्ट हो ही, है ना? परछाई बनाते हो ना जब ऐसे भूत वाला चेहरा अंधेरे में, तो करके देखना, जितना लाइट के आप पास जाओगे आपकी परछाई बड़ी बनेगी, जितना दूर जाओगे उतनी छोटी बनेगी, ठीक है? अब शेप ऑफ एन शैडो, शैडो की शेप क्या होती है? The shape of an shadow depend on the angle at which the light fall on it or the shape of the part of an object that blocks the path of a light. देखिए शेप शैडो की उस पे बनेगी जितने जितने हिस्से पे लाइट आ रही है सिर्फ उस हिस्से की शैडो बनेगी, ठीक है? मैं क्या कहना चाह रही हूं, जितने हिस्से पे लाइट पड़ रही है उतने हिस्से की ही सिर्फ शैडो बनती है, क्लियर? आगे देखते हैं, साइज ऑफ अ शैडो, शैडो का साइज, शैडो देखते हो ना, कभी छोटी बनती है कभी बहुत बड़ी बनती है, हमारी हाइट इतनी सी और शैडो इतनी बड़ी बन जाती है, ये कैसे? कोई लॉजिक है? बिल्कुल है, लेट्स सी। द साइज ऑफ एन शैडो इज लॉन्ग व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड अलोंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज शॉर्ट व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड अलोंग द विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट की लेंथ के सामने लाइट पड़ रही है तो उसकी जो शैडो है बड़ी बनेगी, और जब उसकी वृत्त के सामने रख दिया आपने लाइट तो शैडो छोटी बनेगी। अब आप कहोगे मैम समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया, सब ऊपर से गया। मतलब मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे भी यही चीज लिखी हुई है, जैसे मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे आपकी शैडो लंबी बनती है, कैसे? क्योंकि सन उस टाइम देखो या तो ईस्ट या वेस्ट में होता है, आपके वीकेंड से आपके हॉरिजन में होता है, इस तरीके से, है ना? तो आपकी शैडो लंबी बनेगी। और वही अगर आफ्टरनून में बात करें 12-1 बजे, तो सन एकदम आपके सिर के ऊपर होता है, अगर सिर वृत्त में होगा आपके तो शैडो छोटी बनती है, इसलिए 12 बजे के टाइम पे आपको सबसे छोटी शैडो मिलती है अपनी, क्लियर? सो देख रहे हो कैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग में आपकी लंबी शैडो बनती है और आफ्टरनून में आपकी छोटी शैडो बनती है। तो यही है आपकी शैडो के साइज के बारे में। आगे देखते हैं, द साइज ऑफ शैडो डिक्रीजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स द स्क्रीन। ये तो मैंने आपको कहा शैडो डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे आप पास आते रहोगे, ओके? द साइज ऑफ शैडो इंक्रीजेस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूव टुवर्ड्स द लाइट सोर्स। देखिए जितना लाइट सोर्स के पास जाते रहेंगे उसकी इंटेंस शैडो बनेगी, उसकी क्या बनेगी? इंटेंस शैडो बनेगी, जितना आप लाइट सोर्स के पास जाते जाओगे। Our shadow usually has two parts, an area complete darkness at the center known as umbra. जो बिल्कुल पास वाला एरिया होगा उसको क्या कहेंगे? umbra, okay? And it's an area of partial darkness at the edges is known as penumbra. The umbra receive no light from the source while the penumbra receive only some lights from the source. ठीक है, ये शैडो के ही पार्ट है। देख रहे हो यहाँ पे अगर हमने कैंडल रखी, इसकी शैडो देख रहे हो किस तरीके से चेंज हो रही है। ये सिर्फ उस पर डिपेंड करता है कि कितनी लाइट उस पर पहुंच रही है। जितनी इंटेंसिटी की लाइट, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट होगी उतनी इंटेंसिटी की शैडो बनेगी, उतनी अच्छी और वी कैन से डार्क शैडो बनेगी, ठीक है? चलिए, अब आपका लाइट क्लियर हो गया और शैडो के बारे में क्लियर हो गया। अब देखते हैं एक्लिप्स क्या होता है, ठीक है? एक्लिप्स क्या होता है? एन एक्लिप्स इज अ एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट दैट ऑकर व्हेन एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट इज टेम्पररी
absolutes by passing into the shadow of one another or another object or having another object body pass between the viewers. कुछ नहीं है इसमें. इसमें eclipse में दो चीज की चीजें होती है. इसमें क्या होता है, कोई चीज बीच में आ जाती है ना, तब उसका एक्लिप्स बन जाता है. देखिए, एक सोलर एक्लिप्स होता है, एक लूनर एक्लिप्स होता है. आप इस फोटो के साथ देख सकते हो. देखिए, सोलर एक्लिप्स में क्या होगा, ये देखिए, सोलर एक्लिप्स को हम बोलते हैं, सोलर मींस रिलेटेड टू सन. सोलर का मतलब ही सन से रिलेटेड होता है. सो अ सोलर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ सन एज इट सीन फ्रॉम द अर्थ. जब मून आ जाए अर्थ एंड सन के बीच में. क्या आ जाए, मैं कह रही हूं, मून आ जाए सन एंड अर्थ के बीच में. The type of solar eclipse event depends on the distance of the moon from the earth during the event. Of course, eclipse depend करता है distance पे भी, ठीक है. When the sun is completely blocked by the moon, it is known as total eclipse. जब completely पूरा block कर दे moon sun की light को, उसको बोलते हैं total eclipse. पूरा का पूरा eclipse हो जाएगा. आपने ये देखा भी होगा कि एकदम रात हो जाती है ना, तो हमें लगता है कि सन के आगे कुछ ब्लैक सा कुछ आ गया है, पर वो ब्लैक सा कुछ नहीं आता, वो मून आ जाता है ना. सो अ टोटल सोलर एक्लिप्स अंडर द मोस्ट फेवरेबल सर्कमस्टांसेस कैन बी व्यूड फॉर 7 minutes and 31 seconds. सो इसके नॉर्मली जब ये ऐसा होता है लूनर एंड सोलर एक्लिप्स, तो कितने टाइम पीरियड का ड्यूरेशन का होता है, ये मोस्टली 7 minutes तक का मान सकते हैं, ठीक है. तब हम कहेंगे कि ये है सोलर एक्लिप्स. क्या है बच्चा, सोलर एक्लिप्स. अब लूनर एक्लिप्स क्या होगा, इसी का उल्टा, ठीक है. इसमें क्या हो जाएगा, अब देखो, ये लूनर एक्लिप्स में क्या है, सन इधर है, मून इधर है, इसके बीच में अर्थ आ गया, समझे. सो लूनर एक्लिप्स मींस रिलेटेड टू मून. लूनर का मतलब ये मून से रिलेटेड. लूनर एक्लिप्स ऑकर व्हेन द मून पासेस थ्रू द अर्थ शैडो. अब अर्थ आ गई है उसके बीच में. Since this occur only when the moon is far from the earth from the sun, lunar eclipse only occur when there is a full moon. Unlike a solar eclipse, a lunar eclipse can be observed from nearly an entire hemisphere. तो ये था दोनों का मतलब, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स का मतलब, ठीक है. तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या देखा, लाइट के बारे में देखा, शैडो के बारे में देखा एंड एक्लिप्स के बारे में देखा. अब फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन प्रोड्यूस लाइट इज नोन एज. जो लाइट प्रोड्यूस करती है उसको तो लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, है ना. सेकंड, व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट. जब लाइट उस पर पड़ती है तभी वो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखते हैं. वो ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट जिस पे लाइट पड़ेगी तभी आपको दिखते हैं. नेक्स्ट, अ ग्लास टम्बलर इज अब ग्लास है वो क्या है, वो किसका एग्जाम्पल होगा, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का. वो ट्रांसपेरेंट है क्योंकि वो कंप्लीटली अपनी लाइट्स को पास करने देता है. नेक्स्ट है फोर्थ, अ शैडो इज अ लॉन्ग इन. शैडो सबसे लंबी कब बनती है, आपकी मॉर्निंग एंड इवनिंग. सो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी में आपकी शैडो लॉन्ग बनती है. फिफ्थ इज अ लूनर एक्लिप्स ऑकर. लूनर एक्लिप्स आपका सोलर एक्लिप्स कब होता है, सॉरी, सोलर एक्लिप्स कब बनेगा, जब मून आ जाता है किसके बीच में, सन एंड अर्थ के बीच में. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, चलिए अब कुछ फिलअप्स दे रखिए आपके पास. सबसे पहले देखिए, जो जो पहले आता जा रहा है ना, पहले वो कर दो, ठीक है. जैसे आपको लिखा, ऑल द थिंग्स कैन बी सीन, फिल इन द ब्लैंक, फॉल ऑन देम, बाउंस बैक ऑन देम. इसके 3 ऑप्शन है, इसको अभी छोड़ो. आप सेकेंड पार्ट मुझे बताओ. थिंग्स दैट प्रोड्यूस लाइट, जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसको क्या कहते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट. सो ये हो गया सेकेंड, ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड इज आ फिल इन द ब्लैंक इज फॉर्म व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ ए लाइट. क्या बनती है ओपेक ऑब्जेक्ट की, शैडो बनती है. तो ये थर्ड हो गया. एंड फोर्थ क्या, अ फिल इन द ब्लैंक एक्लिप्स ऑकर व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन सन एंड मून. सन एंड मून के बीच में अर्थ आ जाए तो क्या बनता है, लूनर एक्लिप्स. अब बाकी बचे हुए आंसर्स आएंगे फर्स्ट वाले के, है ना. अब क्या आएगा, ऑल थिंग्स कैन बी सीन व्हेन, किसकी वजह से इतने, लाइट. जब उसमें लाइट पड़ती है, लाइट फॉल ऑन देम एंड बाउंस बैक एंड ट्रेवल थ्रू स्पेस टू रीच टू योर आईज. यहाँ पे स्पेस आएगा और लास्ट में आपकी आईज आएगी, समझे. चलिए अब ट्रू फॉल्स बताइए मुझे. फर्स्ट वन इज लुमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट प्रोड्यूस लाइट. बिल्कुल गलत, लुमिनस ऑब्जेक्ट तो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, है ना. सेकेंड, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अलाउ ओनली अ लिटिल लाइट टू पास. बिल्कुल गलत, लिटिल लाइट्स तो नहीं, सारी की सारी लाइट पास होने देती है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स तो. नेक्स्ट, अ शैडो इज अ डार्क पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. बिल्कुल सही बात है. अ शैडो इज शॉर्ट इन अ मॉर्निंग टाइम. बिल्कुल गलत, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में तो शैडो हमारी सबसे लंबी बनती है,
है ना। A total eclipse can be occur due of almost 7 minutes and 31 seconds. ये तो बिल्कुल सही बात है, हमने देखा था। चलिए अब कुछ आपके दे रखे हैं, what will happen, क्या होगा। An opaque object block the path of an light, तब क्या बनता है, शैडो फॉर्म होगी, है ना। जब लाइट को ब्लॉक हो जाती है तभी तो शैडो फॉर्म होती है, बिल्कुल सही। द सन इज ओवरहेड इन द मून, जब सन हमारे आफ्टरनून में होता है तो वेरी शॉर्ट शैडो विल फॉर्म, छोटी सी शैडो बनती है हमारी। एंड थर्ड वन, द मून पासेस थ्रू द अर्थ शैडो, क्या होगा, द मून पासेस थ्रू अर्थ शैडो, तो क्या बनता है, सोलर एक्लिप्स। ओके, चलिए अब कुछ क्वेश्चन आंसर है। वी आर एबल टू सी थिंग्स ड्यू टू light, due to the reflection of light we can see the things around us. Next is, what do you mean by reflection of light? Reflection of light, when the light bounce back to us, is known as reflection of light. What do you mean by shadow? When an opaque object block the light, there is a form there, the shadow will be formed. What do you mean by eclipse? हमने पूरे अच्छे से देखा eclipse क्या है, ये रहा। अब आप बोलोगे कहाँ है, ये रहा eclipse, समझे। और कितने टाइप के एक्लिप्स है, 2 टाइप के एक्लिप्स थे, ठीक है। और ये तो आप बता ही देंगे, नम्रा एंड प्रीनम्रा क्या होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर और हमने अपनी पूरी की पूरी बुक खत्म कर दी है। आई एम होपिंग सो कि आपको सारे चैप्टर अच्छे से समझ में आए होंगे, बढ़िया तरीके से आपको सारी क्लासेस अच्छे से समझ में आई होगी, सारे चैप्टर क्लियर हुए होंगे। तो चलिए फिर अब आपसे मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, टेक केयर, बाय बाय।